Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 19th August 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we go on to the important topics of the day, let us discuss आज का जो date है 19th August. What is it celebrated as? It is celebrated as World Photography Day and we also celebrate World Humanitarian Day. तो ये दो आज के दिन 19th August आपको याद रखना है. Now photography day to ठीक है, to create an observance, to create importance of photography, how it creates memories, ये सब तो ठीक है. Let's understand Humanitarian Day. Why is it celebrated on 19th of August? That is because इस दिन को 2003 में यहाँ पे हम देखते हैं यूएन हेडक्वार्टर्स इन बगदाद, यहाँ पे एक अटैक हुआ था. सो मेनी ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अराउंड 22 पीपल डाइड इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. सो दिस इज मेनली टू काइंड ऑफ पे ट्रिब्यूट टू द वर्कर्स जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस एंड स्पेशली इवन टू ऑनर द वर्क ऑफ वुमेन इन क्राइसिस. सो दैट इज व्हाई दे सेलिब्रेट द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. और इस बार का जो थीम है, इट इज एक्ट for humanity. Okay, so you might have seen hashtag act for humanity. That is the most important. That is the theme of the World Humanitarian Day. Let's now proceed to the articles of the day. पहला जो article हम देख रहे हैं, so mainly we see that many articles are common. The Hindu और Indian Express में जो club करके ही मैंने दिया है. So first article that we are seeing is यहाँ पे जो opposition party है, इनका जो coalition है, India करके कहते हैं. So they want to remove the CEC. अभी कौन है CEC? That is the Chief Election Commissioner who currently is Gyanesh Kumar. Okay, so he is currently the Chief Election Commissioner. And अगर हम देखें who are the other election commissioner, so we know that जो election commission of India जो है, it is a multi-member body. तो यहाँ पे chief एक होता है और दो दूसरे election commissioners होते हैं. तो एक है सुखबीर सिंह संधू and the next one we have is Dr. Vivek Joshi. So there are total 3 members. This is the first one, this is the second one. So they want to remove whom? They want to remove the Chief Election Commissioner. Why they are not saying about Election Commissioner? Because इनको अगर निकालना है तो CEC recommend करता है. Whereas CEC को निकालना है तो कौन निकाल सकता है? It is done similarly like we have for the Supreme Court judge. यानी कि पार्लियामेंट निकाल सकती है Chief Election Commissioner को. Now let us understand why are they seeking the motion to remove the Chief Election Commissioner? That is because यहाँ पे Supreme Court ने यहाँ पे order दिया है, right, to publish details जो 65 lakh voters को exclude किया था, okay, with regard to the draft, okay, the बिहार के जो electoral rolls हैं, तो उसके लिए उन्होंने reply मांगा है, Supreme Court ने मांगा है, right, and यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रेस रिलीज था संडे को जिसमें द चीफ इलेक्शन कमीशन सेड दैट द ऑपोजिशन पार्टी इज क्रिएटिंग अ मिस इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे द ऑपोजिशन पार्टी इज सेइंग कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक्ट कर रहा है बीजेपी का पॉलिटिशियन. सो इट्स लाइक अ पॉलिटिकल इशू दैट वी सी. दैट इज व्हाई यहाँ पे वो सीक कर रहा है, वो चाहते हैं कि सीईसी को रिमूव किया जाए. बट ऑन द अदर हैंड इसमें क्या है, दिस बेसिकली अ मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द चीफ इलेक्शन कमीशन. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी, दैट इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. क्विकली वी विल सी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इज दैट राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं द चीफ इलेक्शन एंड द इलेक्शन कमीशन, इनको सैलरी मिलती है एज इक्विवेलेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. ओके, एंड इनका जो टेन्योर होता है, इट कुड बी 6 years और इट कुड बी 65 years, विच एवर इज अर्लियर. So any of the two. Okay. Now CEC और EC की बात करें, they cannot be reappointed. Okay. So CEC cannot be again reappointed as CC. EC cannot be reappointed as EC. But अगर कोई EC है, वो CEC बन सकता है. ओके, सो अगर मैं EC हूं तो मैं CEC में हायर पद पे, हायर पोस्ट पे जा सकता हूं, प्रोवाइडेड
मैंने अपना टेन्योर खत्म नहीं किया है। सो आपको एक ही बार टेन्योर मिलता है 6 साल या 65 ईयर्स। सो इमेजिन समबडी इज से 50 ईयर्स, ओके, ऐसा नहीं कि वो 15 साल ईसी बन सकते हैं, ही ओनली गेट्स 6 more years which is 56 ईयर्स तक। इज दैट क्लियर? इफ समबडी इज से 62 ईयर्स, ऐसा नहीं कि और 6 साल मिलेंगे इनको, ईयर इन दिस केस दे विल ओनली गेट 65। सो ईदर 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जहां पे वो जल्दी पहुंचते हैं वो एज में, वो उनका टेन्योर होगा। क्लियर? सो टेन्योर तो हमने डिस्कस किया है, उनका अपॉइंटमेंट भी डिस्कस किया है। अभी हम देखते हैं इनका रिमूव करना है तो कैसे होता है। रिमूवल जो है, ये रिमेंबर ही कैन रिजाइन, एंड जो रेजिग्नेशन देते हैं ये दोनों सीसी या ईसी दोनों प्रेसिडेंट को ही देते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम देखते हैं द सीसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज by the parliament. As I said, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट जज की तरह ही इनका प्रोसीजर होगा, यानी कि पार्लियामेंट हटाएगी। सो यू मस्ट हैव सीन इन द जब यशवंत राव का जब केस कर रहे थे हाई कोर्ट जज के बारे में, सो वी ऑलरेडी सॉ अबाउट इट कि रिमूवल कैसे करते हैं। 50 वोट्स फ्रॉम राज्यसभा और 100 वोट्स फ्रॉम लोकसभा, फिर मोशन लेता है सुप्रीम कोर्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फिर वो डिसाइड करता है कि क्या इसको आगे दिया जाए। अगर मान लो कहते हैं आगे दिया जाए, देन इंक्वायरी कमेटी बैठती है कि क्या उन्होंने सच में गलती की है, फिर वोटिंग होता है। एंड ये जो वोटिंग होता है पार्लियामेंट में, तो याद रखना ये पार्लियामेंट में जो वोटिंग होता है इट हैपेंस थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि इट्स नॉट वेरी इजी टू रिमूव दीज हाई पोस्ट, राइट? सो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 50% नहीं, that would be simple majority, we would write 2/3 majority, 2/3 जो है उस मेजोरिटी के हिसाब से इनको हटा सकते हैं। बट दिस रिमेंबर इज ओनली फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर तुमको इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है, यानी अगर तुमको सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी को हटाना है, तो ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं ओनली बाय द सीईसी, यानी पार्लियामेंट इनको हटाएगी नहीं, ये सिर्फ सीईसी ईसी को हटा सकती है। नाउ लिटिल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल हम देखते हैं, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर है, इट इज आर्टिकल 324। इट वाज क्रिएटेड ऑन 25th January 1950, and that is why 25th January we celebrated as National Voters Day. ओके, नाउ ये हम अभी ये सीईसी की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है? सो विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है इन इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो हम देखते हैं कि पहला एक सर्च कमेटी होता है। ठीक है? सर्च कमेटी जो हेड करते हैं बाय द लॉ मिनिस्टर। So law minister heads the search committee. तो वो 5 names डिसाइड करते हैं। ये 5 names फिर देते हैं सिलेक्शन कमिटी को, जो एक्चुअल में सिलेक्ट करते हैं। अभी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन है? सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स 3 लोग होते हैं। इट कुड बी, वन इज द प्राइम मिनिस्टर, द सेकेंड इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी, एंड द थर्ड वन इज द कैबिनेट मिनिस्टर है। और इस पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि अमित शाह जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर इस सिलेक्शन कमेटी में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये 3 लोग फिर डिसाइड करते हैं कि कौन होना चाहिए द इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसने कहा था कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, ये थोड़ा अनबायस्ड है। क्यों? बिकॉज दिस वुड बी 2:1, राइट? 2 एक पार्टी के हैं, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह, whereas Rahul Gandhi is from the opposition. So this will create like a biasness towards the ruling party. तो इसीलिए इनफैक्ट उन्होंने सजेशन किया था कि when we talk about the selection committee, it should be leader of opposition, ये तो सही है, प्राइम मिनिस्टर ये भी सही है, तो लीडर ऑफ द मेजर पार्टीज। इनके अलावा ही सेड सीजेआई होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ सीजेआई को रिप्लेस किया गया था बाय द कैबिनेट मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिकल
not article, you could say what is the name of the judgment जहां पे ये केस बताया था. So you have to tell me the name of the Supreme Court judgment or Supreme Court case in which the Supreme Court said that जो selection committee के members CJI, PM और leader of opposition होना चाहिए. 2023 का केस है and that you have to tell me in the comment section. Is that right? Now we will proceed to the second article of the day. Second article है who decides the nominations to Union Territories Assemblies. Okay, so we've heard कि कुछ members nominated होते हैं in the legislative assemblies. Okay, तो अगर हम देखते हैं लोकसभा में भी कुछ nominated हुआ करते हैं, state legislative assemblies में भी होते हैं, and similarly union territories में भी होते हैं. अभी कितने union territories हम देखते हैं जिनके पास एक legislative assembly होता है. We know that there are 28 states and 8 union territories. 28 states में we have 28 legislative assemblies. हर state में एक assembly होता है जिसका काम है law बनाना. Now सभी 8 union territories में however ऐसा कोई legislative assembly नहीं, सभी 8 में नहीं है, कुछ ही में है. और कितने में है? Only 3. And which are the 3? एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है दिल्ली. So only these 3 union territories have legislative assemblies. तो अभी इनमें भी nominations होगा, right? Like we have in these 28 states के legislative assemblies में कैसे nominations होता है, यहाँ पे भी कुछ nominations होते हैं. Now let us see what is the story here. Story ये है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है यानी कि अमित शाह, इन्होंने बताया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट में, वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, इनके पास पावर होगा टू नॉमिनेट 5 मेंबर्स. ओके, नॉट 1 नॉट 2 बट 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं. और ये भी जो नॉमिनेशन है, दिस वुड बी विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यानी कि जो अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की ये बात है जहां पे उन्होंने बोला कि तुम 5 लोगों को नॉमिनेट करो और इसमें तुम यहाँ पे इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स हैं यानी कि उमर अब्दुल्ला है, आप उनसे मत पूछना, इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मत पूछना, आप खुद ही यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हो. दैट मीन्स दे कैन वर्क ऑन द एड and without the aid and advice of the council of ministers. So ये स्टोरी है. अभी हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में. So यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं in regard to nominated members in the legislature. So here we see लोकसभा की बात करें, earlier we had 2 members जो तुम नॉमिनेट कर सकते हो from the एंग्लो इंडियंस. अभी एंग्लो इंडियंस क्या है? जिनके जो forefathers हैं were from European descent. Okay, not only necessary with regard to English but European. ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियंस जो थे, लेकिन 2020 में इसको डिसकंटिन्यू किया. Now can you tell me what is the Constitutional Amendment Act जिसके अंडर इसको बंद किया? You have to write the Amendment Act. इसका नंबर चाहिए मुझे इन द कमेंट सेक्शन, जहां पे ये 2 एंग्लो इंडियन सीट्स जहां पे नॉमिनेशन पहले होता था ये बंद किया, और ये यहाँ पे क्लू भी दिया है कि ये 2020 में हुआ था. सेकेंड वी हैव इन राज्यसभा. तो अभी लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? द आंसर इज नो. ओके, क्या राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? द आंसर इज यस. और कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे? 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एंड दिस इज डन बाय द प्रेसिडेंट. Okay, so this is done by the president, and यहाँ पे he has to listen to prime minister and his council. यानी कि the council of minister से उनको advice लेना पड़ेगा, and then only he will see कि किसको अपॉइंट किया जाए. So they could be like जैसे ex चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, राइट. और ऐसे ही करके बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आर मेनली फ्रॉम somebody who has very good knowledge of his field, या कोई आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ओके, या फिल्म सेक्टर, जो जिनके पास नॉलेज है, they select those people in this particular Rajya Sabha, right?
फिर आते हैं स्टेट असेंबलीज में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हम देखते हैं पहले एक एंग्लो इंडियन सीट रहता था, पर इसको भी रद्द किया। सो दैट मीन्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वी डोंट हैव एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स एनी मोर। क्लियर? बट काउंसिल्स की बात करें, नाउ वी नो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स में ही है। ओके, सो वी सी दैट अपार्ट फ्रॉम ऑल द 28 जो स्टेट्स हैं, इसमें केवल 6 स्टेट्स में काउंसिल्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नाउ अगेन use the comment section to tell me which are these 6 states that have the legislative council. ओके, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/6 जो मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट करते हैं बाय द गवर्नर। सो प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स फॉर राज्यसभा, दैट इज 12 इन नंबर, एंड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इट्स 1/6 एंड दैट इज बाय द गवर्नर। एंड यहाँ पे भी याद रखना, दे हैव टू फॉलो व्हाट द एडवाइस इज टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी वो एडवाइस करते हैं क्या किसको अपॉइंट करना है या नॉमिनेट करना है, ये वो गवर्नर को बताते हैं और गवर्नर को उसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड विद यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे व्हाट इज द केस? सो यहाँ पे हम देखते हैं विद रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरीज की असेंबलीज, वी सी दिल्ली में यहाँ पे 70 इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, यानी लोग यहाँ पे वोटिंग करके 70 ऐसे एमएलएज को देते हैं एंड दे डोंट हैव एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, सो दे डोंट हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स। सेकंड थिंग इज पुडुचेरी। पुडुचेरी में 30 ऐसे इलेक्टेड एमएलएज होते हैं और अप टू 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं एंड दैट इज डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए। Third case is with regard to the third union territory, that is Jammu Kashmir. Jammu Kashmir, now we know that Jammu Kashmir was a full-fledged state, right? But 2019 में it was divided, okay, and it was made into 2 union territories. One is Jammu Kashmir and the second one is Ladakh. Now Ladakh did not get a legislative assembly, but Jammu Kashmir got its legislative assembly for elections और सब हुए। So with regard to जम्मू कश्मीर के Reorganization Act 2019 जो अमेंड किया गया था 2023 में, यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि कितने सीट्स होने चाहिए, तो इन्होंने इनको फिक्स कर दिया है to 90 elected seats. Is that clear? So among all the union territories, जम्मू कश्मीर के पास ज्यादा सीट्स हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, एज वेल एज 5 यहाँ पे नॉमिनेटेड सीट्स भी है, और ये नॉमिनेटेड सीट्स LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करता है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू कश्मीर। और ये जो 5 मेंबर्स हैं ये कहाँ से आते हैं? 2 of them are women, 2 of them are Kashmiri migrants, one is a displaced person from POK, that is Pakistan occupied Kashmir. तो ये 5 मेंबर्स इन्होंने बताया भी है कि कहां से इनको चुनना है। Now let us see some Supreme Court judgments with regard to this particular case of nominations. तो एक केस है के लक्ष्मी नारायणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट कहते हैं कि इट हैज अपहेल्ड द यूनियन गवर्नमेंट्स पावर टू नॉमिनेट 3 Puducherry MLAs without the union territories government's advice। यानी कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे पुडुचेरी की बात करें, ये कौन अपॉइंट कर रहा है? ये LG अपॉइंट कर रहा है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। दे आर नॉट टेकिंग द एडवाइस ऑफ पुडुचेरी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका एडवाइस ही ले रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है। और ये कौन से जजमेंट में कहा था? द जजमेंट वाज लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। नाउ इन दिस वी हैव एस्टैब्लिश्ड द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड। नाउ व्हाट इज द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड? लेट्स अंडरस्टैंड। सो वी हैव जो सिविल सर्वेंट्स हैं, okay, like IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी। जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स है, उनका बॉस कौन है? उनका बॉस है द मिनिस्टर्स,
right? The ministers, like for example, you have Amit Shah, you have Rajnath Singh, S. Jaishankar, Nirmala Sitharaman. These are all ministers, यानी कि they are executive का part. Now these ministers, उनको जवाब देना पड़ता है in the legislature. पार्लियामेंट में जवाब देते हैं, right? तो legislature पे उनकी accountability set की गई है. और अगर हम इसको और भी थोड़ा आगे ले, legislature में जो है, right? These are MLAs या MPs, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, एमपीज या एमएलएस, इनको कैसे चुना गया है? लोगों ने चुना है. इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? तो अगर ये अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो लोगों के पास इतना पावर है कि उनको नेक्स्ट इलेक्शन में जिताया नहीं जाएगा, right? So they are accountable in turn to the people. So the main three command, triple chain of command is this. ठीक है, इनका अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे, इनका अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे और इनका अकाउंटेबिलिटी पीपल में. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रिपल चेन ऑफ कमांड. तो इसके हिसाब से द एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन कुछ मैटर्स के लिए ये रिजर्व किया गया है. सो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में व्हेन यू टॉक अबाउट लैंड एंड ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस, दैट इज गिवन टू द एलजी. उसको यहाँ पे एड एंड एडवाइस यानी काउंसिल मिनिस्टर से पूछना नहीं पड़ेगा. सो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, whereas for the rest of the things they have to work according to the ministers. Is that clear? Now, what are the problems with this particular case? जहाँ पे अमित शाह ने कहा है कि 5 members को तुम अपॉइंट कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो without talking or without asking the council of ministers. What are the repercussions of this? Concern ये है कि ये majority को alter कर सकती है ना. 5 is a bigger number. Okay? ऐसे लगता है कि अरे 5 ही तो members हैं, but नहीं. This can change majorities. Okay, further, especially because ये assembly जो है ये small in number है, right? In 10 people, okay, if we say that if 3 people are nominated, it's a big number out of 10. But अगर मान लो it was 500 में 3 अगर add या इधर का उधर हो जाए, nobody will like worry. But because the number is small, that is a major problem. Secondly, सेंटर और यूनियन टेरिटरी में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, दिस विल लीड टू वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप कह रहे हो कि आप खुद से काम करो, तो क्या होगा, जो ट्रस्ट जो बिल्ड होता है सेंटर और यूनियन टेरिटरी में, ये भी अफेक्ट करेगा, लोगों को विश्वास भी यहाँ पे ही नहीं होगा. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. फर्दर, जम्मू कश्मीर अभी नया नया यूनियन टेरिटरी बना, पहले तो स्टेट था, बिकॉज इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये और भी उनको लगेगा कि ओके वी आर बीइंग नेग्लेक्टेड. सो यहाँ पे उनको ऑटोनॉमी था टिल 2019, बट उसके बाद हमने देखा द चेंजेस सिनेरियो, और अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको स्टेट बनना है, एज सेंटर भी कह रहा है कि इन द नियर फ्यूचर ये हो भी सकता है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द होल केस विद रिगार्ड टू यूनियन टेरिटरी नॉमिनेशंस. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द टोल कलेक्शन. ओके, नाउ यहाँ पे एक कमिटी है which is called as the PAC, Public Accounts Committee. We're going to be discussing about this committee in a while. But इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कुछ reforms होने चाहिए for toll collection. Now what is toll collection? जहाँ पे अगर आप कभी भी long drives पे जाते हो या long routes लेते हो, by road जाते हो, you know that you get something called as a FASTag या a toll collection center, जहाँ पे आपका जो गाड़ी का नंबर है डिस्प्ले किया जाता है, as well as यहाँ पे वो रीड करते हैं और आपके खाते से कुछ पैसा डिडक्ट होता है. ओके, देन व्हाट इज दिस मनी दैट इज डिडक्टिंग? ये मनी जो है ये टोल कलेक्शन के अकाउंट में जाता है. नाउ व्हाट इज दिस टोल कलेक्शन? व्हाई डू दे डू दैट? ये जो हाईवेज हम देखते हैं, जो सुंदर सुंदर हाईवेज बने हैं, ओके, ऑफ कोर्स उसके लिए बहुत पैसा लगा होगा, राइट? सो ये पैसे को रिकवर करने के लिए ये टोल कलेक्शन किया जाता है. Is that clear? Now let's understand कि ये कैसे टोल कलेक्शन किया जाता है, what is the legal framework for this toll collection, as well as what is the reforms that PAC committee has given, and we will also see what is PAC committee. So let's see, ये जो पहले normally अगर हम कुछ सालों की बात करें, टोल कलेक्शन वॉज मेनली मैनुअल. तो आप गाड़ी पास होती थी, फिर आप 100 रुपए देते थे, तो चेंज होता तो वापस लेते थे, फिर आपको एक पर्ची मिलती थी. सो दिस वॉज वेरी मैकेनिकल, राइट? एज वेल एज तुम्हारा जो सफर है ये भी बोरिंग हो जाता कि यार ये टोल आया है, फिर तुम यहाँ पे 10-15 मिनट वेस्ट करते थे बिकॉज लाइन लंबी होती है, एंड
each car has to get its own receipt. So it was a very time consuming procedure. That is where they bought something called as a FASTag. Now FASTag एक डिवाइस होता है जहां पे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं RFID का, which is called as रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो वेव्स की मदद से ये क्या करते हैं, एक टैग होता है और दूसरा होता है एक रीडर, ठीक है। सो दे यूज टू पुट द वेव्स आर काइंड ऑफ जनरेटिंग फ्रॉम देयर एंड देन दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड कि कौन सा गाड़ी है और कहां से किस अकाउंट से उसको पैसे निकालने। जस्ट लाइक अ UPI थिंग, लाइक दैट ओनली दिस विल वर्क, ओके। सो ये टोल पेमेंट्स डायरेक्टली कर दिया जाता था, और समटाइम्स व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन, दैट इज आल्सो व्हेन इट विल बी एबल टू रीड। सो दैट इज हाउ क्विक दिस टेक्नोलॉजी इट इज यूजिंग रेडियो वेव्स, ओके। नाउ पेमेंट मेथड जो है ये कौन से प्रोग्राम के अंडर है, द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो कौन से बॉडी ने कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द NPCI, द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज द बॉडी that collects this payment that we see. Now let us understand what are the reforms and how कितना टोल लेना पड़ेगा, ये कौन या कैसे डिसाइड होता है। Now that is because of two acts that we talk about. The first act is the National Highway Act 1956. तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बोलते हैं कि किसके पास पावर है to put the fee, to empower to levy the fee, और रूल्स अगर चेंज करना है टोल कलेक्शन के लिए तो ये कौन कर सकता है। Now दोनों के केसेस में we have the central government who has the power to do that. ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है कितना टोल जाएगा, और अगर चेंज करना है कुछ रूल वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। Now there's another rules called as the National Highway Fees Rules 2008. इस रूल में कहा गया है कि जो बेस रेट होगा ये हर स्टेट में या हर सिटी में ये फिक्स्ड होगा। बेस रेट इज फिक्स्ड, सो इट डज नॉट मैटर कि तुमने कितना खर्चा किया है उस रोड के लिए, राइट। इट इज फिक्स्ड फॉर एवरीबडी, फिक्स्ड फॉर ऑल द रोड्स, ओके। सेकेंड थिंग, हर साल ये बढ़ेगा भी। So there's going to be an annual increase, that is 3% fixed, okay, 3% fixed increase करेंगे and 40% depending on the WPI. WPI क्या है, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसका भी इंक्रीज हो सकता है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं हम WPI. Now there was an amendment to these rules, so let's understand 2000 amendment क्या हुआ था। इसमें बोला है कि तुम लाइफ लॉन्ग, परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूस, तुम इस पे टोल ले सकते हो, ओके। इवन अगर आपने रिकवर कर दिया है पैसे तो भी कोई बात नहीं, ओके। सो यू कैन कंटिन्यू कलेक्टिंग द टोल अमाउंट, ओके। और ये पैसा कहां पे जाएगा, दिस इज हैंडेड टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसका पैसा जमा होगा टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां पे सभी टैक्स पेयर्स का मनी जाता है, उस अकाउंट में जाता है ये इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हमने देखा कि कैसे टोल्स कलेक्ट किया जाता है एंड हु हैज द पावर टू कलेक्ट द टोल्स। कलेक्शन किया जाता है ईदर बाय द गवर्नमेंट, ओके। कलेक्शन कैसे करते हैं, ईदर इट कुड बी द गवर्नमेंट इन केस की पब्लिक का पैसा लिया है, ओके, टू मेक द रोड, देन गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, या दूसरे जगह में प्राइवेट एंटिटीज भी कलेक्ट कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन कि अगर प्राइवेट एंटिटीज आर इंक्लूडेड इन द वेज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो अगर वहां से प्राइवेट को यहाँ पे देके, ऑक्शन को देके यहाँ पे उनको बोला है रोड कलेक्ट करने को या मेंटेन करने को या कंस्ट्रक्ट करने को, तो ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है कलेक्शन सिस्टम। सो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि डिस्पाइट पैसे एक बार तुमने रिकवर कर दिए, तुमने रोड बनाने का जो पैसा जमा कर दिया है ना, तो एक बार कलेक्ट करने के बाद ये टोल तो कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए, है ना। ये परपेचुअल टोलिंग का मतलब इतना पैसे का क्या करोगे। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमीशन है, कमिटी है, इसने बोला ये जो परपेचुअल टोलिंग, ये जो 2008 में तुमने अमेंडमेंट किया था, ये डिसकंटिन्यू करो या तुम रिड्यूस करो टोल्स, ठीक है। जब मेंटेनेंस कॉस्ट या कैपिटल कॉस्ट तुमने रिकवर कर लिया, कम करो, ठीक है। जो बर्डन है जनता पे वो कम करो। फर्दर
ओवरसाइट अथॉरिटी, यानी बोला है कि एनी एक्सटेंशन ऑफ टोल कलेक्शन बियॉन्ड रिकवरी, अगर तुम कलेक्ट भी करते हो तो ये अप्रूव होना है, जस्टिफाई होना है बाय अ सेपरेट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी। तो अगर कलेक्ट करना भी चाहते हो तो तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड केस, स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर, यहाँ पे बोलते हैं कि हम एक एस्टैब्लिश करेंगे एक अथॉरिटी को जो इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, टू इंश्योर कि जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना 3% रेट फिक्स होता है, ईयरली वो चेंज हो रहा है, सो ये भी तुमको अगर करना है देन यू रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर टू इंश्योर व्हाट हैज टू बी डन। नेक्स्ट, लिंक चार्जेस टू कॉस्ट, ये जो तुमने इंक्रीज किया है यू हैव टू वेरीफाई प्रॉपर्ली, और ये क्या बोल रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए टू इंश्योर कि तुमने कैसे ये इंक्रीज किया, इसका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। ऐसे ही तुम आर्बिट्रली इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरा कॉस्ट रिकमेंडेशन दिया। टोल रीइंबर्समेंट्स, नाउ यहाँ पे मान लो तुमको सर्विस अच्छी नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तुमने टोल दे दिया बट वो जो रास्ता है पूरा बेकार है, ओके, उसमें गड्ढे हैं, उसमें बहुत सारा काइंड ऑफ मेंटेनेंस नहीं है, गंदा सा रोड है, राइट। नाउ इसके लिए तुमने पे किया है, यू पे अराउंड 200 रुपीज 300 रुपीज टू गो टू दैट रोड एंड यू सी दैट द रोड इज नॉट गुड, राइट। तो अगर ऐसा हुआ देन यूजर्स शुड बी कॉम्पेंसेटेड, उनको पैसे वापस कर दो, ठीक है, टिल दे डोंट गेट प्रॉपर सर्विस। तुम किसके लिए पैसे दे रही हो, बिकॉज तुमको सर्विस मिल रहा है, लेकिन तुमको सर्विस ही नहीं मिल रहा है, देन यू शुड बी गेटिंग द मनी बैक। तो ये भी उन्होंने कहा कि टोल को रीइंबर्स करो इफ सर्विसेज आर नॉट देयर, कनेक्शन नहीं है, ठीक है, या आधा ही रास्ता किया है उसके बाद नहीं है, तो वैसे। इसमें फास्टैग के लिए भी रिफॉर्म्स कहा गया है कि जो मैल फंक्शन, सो व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इज जब तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, यू गो थ्रू द फास्टैग, समटाइम्स ये जो रीडर्स हैं काम ही नहीं करते हैं, ओके, ये जो तुम्हारे कैमरा जैसे लगे हैं वो काम नहीं करते, ठीक है। फर्दर कुछ सर्विसेज होने चाहिए ऑन द साइट इटसेल्फ। मान लो कि मेरा बैलेंस होता है, यू नीड टू फिल योर बैलेंस, राइट। सो इमेजिन इफ यू नॉट एबल टू डू दैट, या यू वांट सम अदर सर्विसेज, या तुमको एक फास्टैग का स्टिकर लगाना है, नाउ यूजुअली दैट डज नॉट हैपन इन दिस टोल काउंटर्स। तो इन्होंने यहाँ कहा गया है कि तुम ऑन साइट सर्विसेज भी प्रोवाइड करो, यहाँ पे जो कलेक्शन करने के टाइम पे दूसरे सर्विसेज भी प्रोवाइड किया करो, मे बी कीप अ सेपरेट लाइन फॉर दैट कि तुम टॉप अप और सब कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा भी है कि अगर मान लो यू डोंट हैव फास्टैग, ठीक है, अगर तुमने फास्टैग, तुम्हारे पास रिचार्ज नहीं है या बैलेंस लो है, और मान लो कि तुमने रिचार्ज नहीं किया एंड यू गो थ्रू द फास्टैग काउंटर, इन दैट केस इट इज सेड कि तुम्हारा जो पैसा कट जाता है दैट इज twice the amount, okay, twice the amount you are asked to pay, because तुमने दूसरों का जो समय है बर्बाद किया है because of payment and all of that, so that is also what the government has done, they double the amount if you don't have a proper full top up or if you have not had a FASTag। तो ये तो देखा हमने reforms with regard to PAC। Let's now see the PAC क्या है, ये देखते हैं body। Now this is an oldest parliamentary accounts committee, oldest committee of the parliament, 1921 में बनी थी। यहाँ पे देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज टू एंश्योर कि वो ऑडिट करे द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि जो पब्लिक का पैसा है वो सही से इस्तेमाल हो। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस? टू चेक ऑन द मनी। नाउ वी से दिस इज अ स्टैंडिंग कमिटी, वी कॉल दिस अ स्टैंडिंग कमिटी। Okay, so it's how is it different from other committees in the parliament? So you got ad hoc committees, आपने सुना होगा joint parliamentary committee। तो ये ऐसे दूसरे committees से अलग कैसा है? In case of a standing committee, it could also called as DRSC, that is Departmental Related Standing Committee. We've got about 24 such committees, ठीक है, 24 ऐसे committees होते हैं, और ये जो committees है fixed है, परमानेंट है, ऐसा नहीं कि एक बार लगाया है उसके बाद हटा दिया, नहीं। Whereas ad hoc committee is mainly something that is done for a specific issue, specific purpose। टेम्पररी होते हैं ये ad hoc और joint parliamentary committees। मतलब मान लो कोई बिल है उसको डिस्कस करना है तो एक joint parliamentary committee बिठाई जाती है, वो डिस्कस करते हैं, एक बार डिस्कस हुआ तो वो ठप हो जाती है। That is what the
ad hoc or the joint parliamentary committee work, but standing committee is more permanent in its nature. तो ऐसे around 24 है, 16 are in by the ownership of the Lok Sabha members, and whereas 8 are with regard to the Rajya Sabha members. Okay, इनका यहाँ पे appointment और सब होता है. Now what are the functions? As I said, ये कमिटी चेक करती है कि जो भी कैग के रिपोर्ट्स आते हैं क्या वो सही है. ओके, ये जो एग्जामिन करती है ओके कि कहाँ पे खर्च हुआ है, या जो ऑडिट रिपोर्ट्स आते हैं ये पूरा वो जांच पड़ताल करती है. Further, it will ensure that the money sanctioned by the parliament is spent properly. Okay, that is also what it does. It spends, checks on the spending also. Further, it investigates financial irregularities. अगर कुछ inefficiencies है, गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही खर्च कर रही है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में, तो यहाँ पे ये अलार्म क्रिएट करती है, यहाँ पे ये हाईलाइट करती है. नाउ कितने मेंबर्स होते हैं ये पीएसी कमिटी में? पीएसी कमिटी में 22 मेंबर्स होते हैं. और कौन इसको अपॉइंट करता है? द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द लोकसभा का स्पीकर. ओके, लोकसभा का स्पीकर इसको अपॉइंट करता है. बिकॉज यू सी 15 मेंबर्स लोकसभा से हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से हैं. और कितना टर्म के लिए होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी तो परमानेंट है बट हर साल इसको मेंबर्स चेंज होते रहते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेंबर्स हैं इनका टर्म 1 ईयर तक होता है. एंड हियर वी सी मोस्टली लोकसभा का ही मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे इसका चेयरमैन होता है. ओके, सो लोकसभा का मेंबर जो ऑपोजिशन पार्टी से है वो इसका chairman होता है. So this is something that we have to remember. The Lok Sabha MP, mainly, let's for example, let's take Rahul Gandhi. Okay, so he is a Lok Sabha MP, but he is from the opposition, so he can be like the chairman of the committee to ensure कि हम accountability set कर रहे हैं of the legislature, of the ministers as well. Now remember, यहाँ पे minister अगर हो आप तो आप PSC के member नहीं हो सकते. यानी कि निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, they cannot be the PSC के members. Okay, तो members कितने हैं? 22. और ये जो लोकसभा MP है ये इनका चेयरमैन है. So this is what we see with regard to the PAC committee. Let's proceed to the next article. Now we see that बहुत सारा डिस्कशंस जो है इट इज विद रिगार्ड टू द पार्लियामेंट इटसेल्फ, बिकॉज वी नो दैट पार्लियामेंट के सेशंस चल रहे हैं. तो ये वाला भी आप देखोगे, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बिल इन द लोकसभा टू डीक्रिमिनलाइज 200 ऐसे प्रोविजंस है. ना व्हाट act are we talking about? Let's understand. We're talking about the Jan Vishwas Act. ठीक है, तो इसमें क्या है जन विश्वास एक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्ट फर्स्ट. ये पहला ऐसा एक्ट है जहां पे डीक्रिमिनलाइज करता है माइनर ऑफेंसेस को. मतलब अगर आपने छोटी मोटी चीज किया है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया जाएगा, जेल दिया जाएगा या फांसी दी जाएगी. नहीं, यहाँ पे आपको इधर पैसे देके आपको छोड़ दिया जाएगा. छोटे ऑफेंसेस हैं, देन यू आर गिवन स्मॉलर पनिशमेंट्स एंड यू आर लेफ्ट. यू आर नॉट ओवरक्राउडिंग द प्रिजन्स हियर. तो ये अगस्त 11 2023 में आया था, 2023 में. एंड यहाँ पे पहली बार जब आया था 18 प्रोविजंस को यहाँ पे उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया था 42 ऐसे एक्ट्स में. ओके, so that is what the work that they did in 2023. अभी वापस से इसका अमेंडमेंट हो रहा है. तो अमेंडमेंट की बात करें, यहाँ पे अभी उन्होंने बढ़ा दिया 355 प्रोविजंस अक्रॉस अदर 16 ऐसे एक्ट्स में यहाँ पे उन्होंने चेंज किया. तो 288 में उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया है ऐसे कुछ चीजों को, और 67 में इन्होंने चेंज किया है टू इंक्रीज और टू इम्प्रूव द ईज ऑफ लिविंग. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. तो यहाँ पे 76 ऑफेंसेस, ये जो 10 एक्ट्स हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला कि वार्निंग देके छोड़ना, एडवाइजरी देके छोड़ना. ओके, इमेजिन छोटी मोटी चीज किया है तुमने, तो तुमको यहाँ पे एडवाइस, बस तुमको धमकी देके यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा. आपको यहाँ पे पनिशमेंट या ऐसे कुछ ज्यादा नहीं देंगे. सेकेंडली, इम्प्रिजनमेंट. अगर मान लो तुमने छोटा टेक्निकल माइनर ऑफेंसेस किए हैं, प्रोसीजर को तुमने फॉलो नहीं किया है. पहले क्या होता था, देयर आर सो सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू फॉलो. इमेजिन इफ यू स्किप अ स्टेप, ओके, स्किप अ प्रोसीजर. पहले होता था कि तुमको जेल दिया जाता था या तुमको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होता था, राइट. सो इन दैट केस यहाँ पे बस तुमको पेनल्टी देना होगा या वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा. सो दैट इज हाउ दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट डीक्रिमिनलाइजिंग दीज लॉज, मेकिंग दिस मोर
standard, making this more uniform. That is the work of the government now. So penalties जो है they are made proportionate. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्त किया जाएगा. Monetary fines will be given instead of jail, and the increase will be only if you are a repeated offender. बार बार वही करोगे तो ऐसा नहीं कि वार्निंग ही देंगे, यहाँ पे उन लोग फिर एक्शन लेंगे. तो ये हमने देखा रिसेंट लॉ जहाँ पे चेंज किया है, डिक्रिमिनलाइज किया है मेजर प्रोविजंस को. Proceeding to the next article, and this article we are talking about Rajya Sabha. तो राज्य सभा ने पास किया है Indian Ports Bill. Indian Ports Bill. So this was already passed by the Lok Sabha. Now it is done by the Rajya Sabha as well. And ये कौन से एक्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है? एक कॉलोनियल पुराना एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908. Who is the minister? जो पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल. ये कहते हैं कि ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक है टू मॉडर्नाइज the maritime sector. Now we know ports again play a very important role. हमने recently भी देखा है कि हमने increase किया है coastal line. Can you tell me what is the exact kilometers of coastal line that India possesses? कितना coastal sector है इंडिया में, ये आपको मुझे comment section में बताना है. Now coming to understand what are the changes done in the Indian Ports Act of 2025. तो 1908 को रिप्लेस किया. इसके अलावा हम देखते हैं we are establishing the Maritime State Development Council. The Maritime State Development Council. तो ये क्या काम करेगी? This will ensure कि वो policies recommend करेगी ताकि हम growth कर सकें, efficiency establish कर सकते हैं. Okay, we have uniformity, competition in the port sector. Now one more aspect. There are something called as major ports, right? जो बड़े बड़े ports है, you must have heard about the Mumbai port, the Chennai port, the Kolkata port. ऐसे ऐसे major ports हैं. इंडिया में currently कितने major ports हैं, ये आपको मुझे comment section में बताना है. Currently India has how many major ports? Okay, so we want to create competition among these ports. We want to create growth. Okay, ताकि ये जो sector है इसमें भी हम ग्रो कर सकें, हमको ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. दैट इज द मेजर एम ऑफ दिस. फर्दर गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई अ न्यू पोर्ट और टू ऑल्टर द लिमिट्स. मान लो कि ऐसे मेजर पोर्ट में हमको कुछ चेंजेस करने हैं या उसको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है. सो इस केस में गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करेगी, इनके पास इतना पावर होगा, एंड दैट इज व्हेन दे विल कंप्लीट द प्रोसेस. तीसरा, the provision to formulate a national perspective plan. Now again ये गवर्नमेंट के पास होगा कि वो एक यूनिफॉर्म एक प्लान दे with regard to the ports. एक नेशनल प्लान होगा for trade related, okay, for trade, maritime trade. Now as I said ये 2025 ने 1908 के लॉ को यहाँ पे उसने रिप्लेस करना चाहा है, राइट? सो दैट वाज आउटडेटेड और उसमें कुछ चीजें नहीं मेंशन की गई थी, लाइक फॉर एग्जांपल द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, द मॉडर्न एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, ओके, द एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सब यहाँ पे कवर नहीं किया गया था. सो दैट इज व्हेन नाउ दिस एक्ट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर मॉडर्न, मोर डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. फर्दर 2025 बिल जो है, एज आई सेड, डिजिटलाइज मॉडर्न करता है इकोसिस्टम, डेवलप थ्रू कंसल्टेशन विथ coastal cities, industry, public spirit of cooperative federalism. So that is how it is unique in its way. Further, we'll proceed to the next article, and this is with regard to Indian astronauts, Indian astronaut to land on moon in 2040. Jitendra Singh, who is the Minister of Science and Technology, इन्होंने लोकसभा में बताया है. So कुछ facts बताए हैं इस particular article में, जल्दी से इसको हम नोट करते हैं, ठीक है? Firstly, also in the other part of the news हम देखते हैं space related. हमारे जो शुभांशु शुक्ला है, जो एक्सियो मिशन का पार्ट लिया था उन्होंने, टू गो टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये जब वापस से उन्होंने रिहैब और सब कर लिया है, ही विजिटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द लोक कल्याण मार्ग, ठीक है? तो इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इनको कुछ गिफ्ट भी दिया है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या सब मिला है इनको. सो ही इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू ट्रैवल टू द ISS एज पार्ट ऑफ द एक्सियोम 4 मिशन. ये जो मिशन है कितने
कितने टाइम ड्यूरेशन था इसका, जून 25 से लेके जुलाई 15, यानी 18 दिन ये स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर थे। ओके, फर्दर इन्होंने गिफ्ट किया है एक्सियोम 4 का एक पैच एज वेल एज द ट्राई कलर, जो उन्होंने ISS में लेके गए थे, जो स्पेस में लेके गए थे, वो फ्लैग उन्होंने वापस मोदी जी को दिया है। सो मोदी जी इज वेरी हैप्पी। ओके, शोड ही क्लिक पिक्चर्स ऑल्सो, ये वाला पिक्चर है वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं which are the future missions that we're talking about। तो जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस बताए हैं। सो वी गोइंग टू सी, फर्स्टली पीएम मोदी इनिशिएटेड स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे 2014 में। सो दे वांटेड टू इंश्योर इवन द प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। दे ऑल्सो वांटेड टू शो कि जो स्पेस सेक्टर है ये एफिशिएंट हो, ज्यादा ब्लूमिंग हो, बिकॉज इट हैज यहाँ पे द की टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। जैसे हमारे जो स्पेस प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, ये हम बिजनेस दे सकते हैं दूसरे को, राइट? हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज को। सो वी वर वांटिंग टू गेट मोर रिफॉर्म्स इन 2014। 2020 में हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया इन दिस सेक्टर। ओके, एंड यहाँ पे इंडिया स्पेस इकोनॉमी इज एट $8 बिलियन, इतना बड़ा है, और 10 सालों में ये $45 बिलियन होगा। So that is a big news now that we have to see. Further 2026 में हम क्या करेंगे, एक स्पेस मिशन देंगे जहां पे इंसान नहीं लेकिन एक रोबो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रोबोज नेम इज व्योममित्रा। तो व्योममित्रा क्या है कि हम एक रोबोट को सेंड करेंगे स्पेस में, एंड दैट इज कॉल्ड द रोबोट नेम इज व्योममित्रा। व्हाई आर वी डूइंग दैट? बिकॉज हमको इंसानों को भी भेजना है इसके बाद। सो 2027 में हम इंसानों को सेंड करेंगे। तो इंसानों को सेंड करेंगे कौन से मिशन के अंदर? दैट इज गगनयान मिशन। एंड हमको पता ही है गगनयान मिशन के जो 3 मेंबर्स हैं, ओके, शुभांशु शुक्ला वाज अ बैकअप, बट बाकी के 3 मेंबर्स ये हमको पता है। वुड रिपीटेड वंस अगेन, द वन इज अंगद प्रताप है ये, just write it down, अंगद प्रताप, then प्रशांत बालकृष्णन अय्यर, and अजीत कृष्णन। तो ये 3 मेंबर्स यहाँ पे रशिया के मदद से दे आर ट्रेनिंग टू बी पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन। ओके, नेक्स्ट इज 2035 हम खुद का स्पेस स्टेशन, जैसे ISS इज नॉट, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, ISS में US है, UK है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कनाडा है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया ने बोला हम खुद का सेंड करेंगे, और ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा दैट विल बेसिकली एक्ट लाइक अ लेबोरेटरी अप इन स्पेस। ठीक है, इट विल बी लाइक अ लेबोरेटरी अप इन स्पेस। फिर 2040 में हम सेंड करेंगे इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून। ठीक है, तो ह्यूमंस हम मून पे सेंड करेंगे इन 2040। एंड विकसित भारत मतलब डेवलप्ड हम कब बनेंगे? दैट इज 2047। सो डेवलप्ड बनेंगे 2047 में, मून में हम इंसानों को भेजेंगे इन 2040। So that is all with regard to today's news articles. बहुत सारे interesting articles, बहुत सारे facts हमने देखे आज की क्लास में. I hope you have understood all of them. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.